ناظرین گلستان نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اردو خبر نامے کے ساتھ میں ہوں ظہور العادی۔ تفصیلات سے پہلے اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ اسمبلی اجلاس کے دوسرے روز کا آغاز 57 مرحوم رہنماؤں کو خراج عقیدت کیا گیا پیش۔ اگر دیوندر رینا کی صحت کے بارے میں علم ہوتا تو دوریاں ختم کرنے کی کوشش کرتا، عمر عبداللہ کا بیان۔ ریاستی درجے کی بحالی سورج کے مشرق سے طلوع ہونے جتنی یقینی، ایل جی منوج سنہا کا بیان۔ جنوبی کشمیر سے 2 لڑکیاں لاپتہ، والدین نے لوگوں اور پولیس سے کی مدد طلب۔ قوانین کی خلاف ورزی پر نجی اسکولوں کے خلاف ہوگی کارروائی، وزیر تعلیم سکینہ ٹو کا بیان۔ سلسلے کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ سب سے پہلے بڑی اور اہم خبر کے حوالے سے بات کریں گے، اور اتر پردیش سے بڑی خبر جہاں پہ سپریم کورٹ نے یو پی مدرسہ ایکٹ کو آئینی قرار دیا ہے، جس کے بعد اس فیصلے سے مدارس کے 17 لاکھ طلبہ کو بڑی راحت ملی ہے۔ اور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا مدرسہ ایکٹ کو غیر آئینی قرار دیا تھا، لیکن یہ فیصلہ اب سپریم کورٹ نے منسوخ کر دیا ہے اور بڑی راحت یو پی کے مدرسوں کے لیے یہ بڑی راحت ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے یو پی مدرسہ ایکٹ کو قانونی قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اس سے قریباً 17 لاکھ طلبہ کو بڑی راحت ملی ہے۔ اتر پردیش کے مدارس میں پڑھنے والے لاکھوں طلبہ کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ عدالت عثمانیہ الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو منسوخ کر دیا ہے، جس میں عدالت نے مدرسہ ایکٹ کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڈ، جسٹس جے بی پارڈیوالا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے اپنے فیصلے میں یو پی مدرسہ ایکٹ کو آئینی قرار دیا۔ بینچ نے کہا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ مذہبی کتابیں پڑھانے سے مدارس غیر آئینی نہیں ہو جاتے۔ عدالت نے سخت تبصرہ کرتے ہوئے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ تعلیمی معیار پر نظر رکھیں گے مگر مداخلت سے گریز کریں گے۔ بینچ نے کہا کہ محض کسی قسم کی مذہبی تربیت یا ہدایت کی وجہ سے کوئی قانون غیر آئینی نہیں ہو جاتا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر غلطی کی کہ اگر قانون سیکولرزم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے ختم کر دینا چاہیے۔ عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ ریاست تعلیم کے معیار کو بہتر کر سکتی ہے لیکن اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس نے بینچ کی جانب سے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ ایکٹ ریاستی مثبت ذمہ داری کے مطابق ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ تسلیم شدہ مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کو کم از کم قابلیت حاصل کرے، جس سے وہ معاشرے میں مؤثر طریقے سے کام کر سکے، حصہ لے سکتے ہیں اور اپنی روزی روٹی کما سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ مدارس اعلیٰ تعلیم کی ڈگریاں نہیں دے سکتی کیونکہ اس سے یو جی سی ایکٹ کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے اتر پردیش کے 16,000 مدارس اور قریباً 17 لاکھ طلبہ کو بڑی راحت ملی ہے۔ اس فیصلے کا مطلب ہے کہ اب اتر پردیش میں مدارس چلتے رہیں گے۔ یو پی میں مدارس کی کل تعداد تقریباً 23,500 ہے، ان میں سے 16,513 مدارس تسلیم شدہ ہے، یعنی یہ سب رجسٹرڈ ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 8,000 مدارس غیر تسلیم شدہ ہے، ایسے 560 تسلیم شدہ مدارس ہیں جنہیں امداد دی جاتی ہے، یعنی 560 مدارس سرکاری پیسے سے چلائے جاتے ہیں جن میں لوگ بھی تعاون کرتے ہیں۔ عدالت کے سپریم کورٹ نے 22 اکتوبر کو سماعت مکمل کرنے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں بات جموں کشمیر کی کریں گے، اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر کی ریاست درجے کی بحالی کے حوالے سے بڑا بیان دیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جموں کشمیر کی ریاست حیثیت کی بحالی اتنی ہی یقینی ہے جتنا کہ سورج کا مشرق سے طلوع ہونا یقینی ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کسی سیاسی کوشش یا وعدے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایل جی منوج سنہا نے شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں ایک تقریب کے دوران اجتماع سے خطاب کرتے ان باتوں کا اظہار کیا، اور جو یہ بیان ایک وقت میں سامنے آیا، اور یہ بیان سمجھا جاتا کہ نیشنل کانفرنس کی ریاست حیثیت کی بحالی کے وعدوں کے رد عمل میں تھا۔ ایل جی منوج سنہا کا کہنا تھا کہ اس کام کے لیے کسی سیاسی کوشش کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی طرف سے پارلیمانی اجلاس میں دی گئی یقین دہانی اتنی ہی سچی ہے جتنا کہ سورج کا مشرق سے طلوع ہونا ہے، اور اس کے لیے کسی کو کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس فیصلوں کا مدعا بڑا چرچا میں ہے
मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान देंगे तो संसद में जब ये बात उठी थी तो देश के गृह मंत्री जी ने जो बात संसद में कही थी, 7 असेंबली किसी के यहाँ बढ़ गई थी, 3 से 90 तक। इन 7 असेंबली सीट की बाउंड्री जम्मू कश्मीर प्रशासन नहीं तय कर सकता। भारत के संविधान में व्यवस्था है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन बनाएगा, तभी उनकी बाउंड्री तय होगी। ये बात कही थी कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकेंड एंड देन स्टेट होल्डर अप्रोप्रिएट टाइम। अभी 21 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीनगर में थे इंटरनेशनल योगा डे पर। उस दिन भी उन्होंने किसी के सभागार जम्मू कश्मीर के लोगों को संबोधित किया और ये बात कही 21 जून को विधानसभा के चुनाव भी जल्द होंगे और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी जरूर दिया जाएगा, जरूर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि राजनीतिक लोगों का सामोल होता है, जो बात संसद में कही जाती है वो एक तरह से बाइंडिंग है, उसे सरकार को मानना ही होता है। ये अश्योरेंस सरकार जो संसद के सदन पर देती है तो उसको उतना ही सत्य मानिए जितना सूरज पूरब से निकलता है। इसमें किसी को कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार का कमिटमेंट है वो जरूर होगा। मैं आपको आगे बढ़ते जम्मू कश्मीर कानून असेंबली इजलास का आज दूसरा दिन था, जिस दौरान गुज़िश्ता 6 साल से ज्यादा अरसे के दौरान इंतकाल कर गए कानून साजों या साबिक अरकान को खराज अकीदत पेश किया गया। 2018 में असेंबली के आखिरी इजलास से अब तक इंतकाल कर गए 50 से ज्यादा अरकान व साबिक अरकान को असेंबली इजलास के दौरान 2 मिनट की खामोशी मनाते हुए खराज अकीदत पेश किया गया। स्पीकर ने साबिक सदर हिंद प्रणब मुखर्जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी और साबिक लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी को खराज तहसीन पेश किया। इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर के साबिक यूनियन वज़रा, अराकीन असेंबली, MLA और अराकीन कानून साज काउंसिल MLC के नुमाया खिदमत को भी याद किया गया। इस मौके पर जिन दीगर रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश किया गया उनमें कमल लाल गुप्ता, अब्दुल डार, मदन लाल शर्मा, मोहम्मद शरीफ नियाज, सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी, रणवीर सिंह और गोविंद राम, और इनको आज खराज अकीदत पेश किया गया। देवेंद्र सिंह राणा को भी याद किया गया, उनकी अवामी खिदमत और रियासत जम्मू कश्मीर के लिए उनकी कुर्बानियों का शुक्रिया अदा किया गया। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर्स ने शर्मा ने असेंबली इजलास के हवाले से कहा कि जो साबिक अरकान असेंबली इस दुनिया में नहीं रहे हैं उन्हें आज खराज अकीदत पेश किया गया। साथ ही सैयद अली शाह गिलानी के हवाले से उनका कहना था कि वो उनके मुल्क मुखालिफ किरदार की शदीद मजम्मत करते हैं। सेशन बहुत ही छोटा है और एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। इसमें एक ट्रेडिशन है, स्पीकर का चुनाव हुआ, लेफ्टिनेंट गवर्नर का एड्रेस हुआ और आज ऑडिटरी। जो भी एक्स लेजिस्लेटर्स हैं जो आज इस दुनिया में नहीं हैं और नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर लोकसभा, ऐसे लोगों को यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाती है और उसी में आज जो नाम थे उनको श्रद्धांजलि दी गई। बड़ी कलेक्टिवली, किसी एक व्यक्ति पे का नाम लेके यहाँ पे नहीं दी गई, कलेक्टिव दी गई क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त थे। एक एक व्यक्ति पर यहाँ पे बोलने से इतना समय नहीं था, सेशन छोटा है, तो आज केवल ऑबिचुरी हुई, श्रद्धांजलि हुई और वो दी। जहाँ तक अगले 3 दिनों की बात है तो अगले 3 दिनों में वोट ऑफ थैंक्स होगा। जो सरकार ने अपनी बातें रखी है, मैनिफेस्टो की बातें रखी है, बाकी चीजें रखी है, उस पर बहस होगी, उस पर वोट ऑफ थैंक्स में वो डिस्कस किया जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ये हाउस है बड़ा सुचारू रूप से चलेगा, हमारा भी पूरा ताउन होगा, लेकिन ऐसी किसी भी नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर एजेंडा, आवर मैनिफेस्टो, उससे हम किसी कीमत पे भी वो सपोर्ट नहीं करेंगे। सैयद अली शाह गिलानी लेजिस्लेटर रहा है इस हाउस का, मैंने पहले भी कहा, आपको भी कहता हूं, मैं बेखबर हूं उनके रोल से जो अंदर रहा है, लेकिन जो रोल उनका बाहर रहा है, कश्मीर में रहा है, भारत विरोधी रहा है, एंटी नेशनल रहा है, उसको हम निंदा भी करते हैं, खंडन भी करते हैं, विरोध भी करते हैं। किसी भी कीमत पे उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने कश्मीर को जलाया, जिस व्यक्ति ने कश्मीर को रक्त रंजित किया, जिस व्यक्ति ने यहाँ पे अलगाववाद फैलाया, जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान के नैरेटिव को यहाँ पे फैलाया,
ऐसे व्यक्ति का विरोध हमें तब भी था, आज भी है, और तब की सरकार ने जो अंडर रूल कार्रवाई करनी थी वो की शहीद अली शाह गिलानी पे, और आज तो वो इस दुनिया में नहीं है, आज भी हमें उसकी उन बातों का, उन विचारों का खंडन करते हैं। और सीपीआईएम के सीनियर लीडर और एमएलए कुलगाम मोहम्मद कारगामी ने कहा कि असेंबली का आगाज अच्छी तरीके से हुआ है। इस दौरान उन्होंने कल के वाकये का भी जिक्र किया और कहा कि उस पर बहस की गुंजाइश कम है। तमाम उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कई मसाइल है जो आवाम से मुतल्लिक है और हमें उन पर बहस करनी होगी। मेरे ख्याल में अच्छा आगाज हुआ और अच्छे ढंग से चल रही है। और रहा सवाल आपने कल के वाकये का जिक्र किया, देखिए कल स्पीकर साहब की खिदमत में हम कुछ बोल रहे थे तो उसमें बहस की गुंजाइश कम है, और हमारे पास कई मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे, लोगों को राहत देने के मुद्दे हैं, जिसमें रोजगार का सवाल है, जिसमें मीडिया पर जो आज तक रुकावटें रही उनको दूर करने का सवाल है, और जो किसानों के मसाइल है, मजदूरों के मसाइल है, और मुलाजिमों के मसाइल है यार, उनको भी घुटन महसूस हो रही थी पिछले कई सालों से। और इस वजह से जहाँ तक पूरे माशरे का ताल्लुक है, इसमें बंदिशें रही है। अब इन बंदिशों से निकलने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है ये हाउस, इस पर बहस होगी मामलात पर। और अभी ये जो सेशन है ये तो बिल्कुल मुख्तसर सेशन है, जिसमें गवर्नर का एड्रेस है, ओबिचुअरी आज थी, जो भी हमसे गुजरे हैं, हमारे रहनुमा रहे हैं इस हाउस में, पार्लियामेंट में। तो इस वजह से और फिर एक प्रोसीजर भी होता है, आपने बहस करना है तो आपने मोशन मूव करनी है, देयर इज अ प्रोसीजर। अगर आपने सवाल उठाना है, ये नहीं है वो हम क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ आए हैं, नंबर बनाने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं। सीरियस इशूज हमारे आवाम को दरपेश हैं, सीरियस मसाइल, और वो जो सीरियस मसाइल है उन पर बहस होनी चाहिए सीरियसली, और उसके लिए एक प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट करना होगा। हम सब में स्पीकर साहब रहनुमाई करते हैं, लेकिन मेंबर हूँ, मैं भी एक मेंबर हूँ। तो आम आदमी पार्टी के वाहिद एमएलए महराज मलिक ने असेंबली इजलास के हवाले से कहा कि आज के इजलास में फौत हुए असेंबली मेंबरान और अहम शख्सियात को खराज अकीदत पेश किया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आम लोगों के मामलों पर भी बातचीत होगी। जरूर है, लेकिन ये जो तर्ज है आज हमने देखा नहीं था, कल कुछ था, आज के लिए कुछ और दिन रखा था। जैसे पुराने लोगों को याद किया गया, उन लोगों की बातें बताई गई, बहुत अच्छी बात है। पहला दिन तो खास नहीं था, आज तो लोगों के बारे में जानकारी मिली है, बहुत सारे लोगों को मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन इतिहास को मैंने बहुत कम पढ़ा है। लेकिन जो जदीद है, जो हमारा कल है, उससे भी देख रहा हूँ, और जो आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस पर भी नजर है। लेकिन इस नजर पे बात कब होगी, वक्त के हालात कब बदलने की बात होगी, तब जाके तो मुझे उम्मीद है कि हाउस से बेहतर उम्मीद रखी जा सकती है। उधमपुर यूनिवर्सिटी से बीजेपी के एमएलए आरएस पठानिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब दोगलेपन की सियासत नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की और रोजगार की बात होगी। छोटा सा एक जिसे कहते हैं, एक हल्का सा पुश किया है, कल से कवर ड्राइव और जिसे कहते हैं स्ट्रेट सेक्टर लगेंगे ऊपर, चिंता मत करें उसमें। ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, और खासकर जिसे कहते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेल जम्मू कश्मीर में चलेगा नहीं। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद चलेगा, जम्मू कश्मीर में रोजगार चलेगा, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का डेवलपमेंट चलेगा, जम्मू कश्मीर में ट्रस्ट चलेगा। धोखाधड़ी, ये डबल स्टैंडर्ड और डबल स्पीच वाली राजनीति जम्मू कश्मीर में चलेगी नहीं। आज खैर ओबीसी रेफरेंस है, मैं इसको ज्यादा पॉलिटिसाइज ना करते हुए आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने बालातर होकर अपने पार्टी एफिलिएशन से जितने भी जो कदावर, जो शौर जिसे कहते हैं, जो नेता हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया है, उनके जिसे कहते हैं आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया है, उनके परिवार वाले उनके जाने के गम को जिसे कहते हैं सह सकें, उसके लिए अपना अपना जिसे कहते हैं एक मंशा बताई है। और सबसे बड़ी बात है कि उनका जीवन उन सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन सके, इंस्पिरेशन बन सके, उनसे कुछ सीख सके, एमुलेट कर सके उनको, इसके बारे में जिसे कहते हैं फोकस किया गया। मैं इसका जिसे कहते हैं इस प्रैक्टिस का वेलकम करता हूं। और कल के बाद जिसे कहते हैं गवर्नर्स एड्रेस पे डिस्कशन है, भारतीय जनता पार्टी खुल के बात करेगी। इस गवर्नर्स एड्रेस में केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो कि भारत सरकार का इनिशिएटिव है, उसके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार के पास और एलजी के पास कुछ भी नहीं है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नया हो। दिस इज ऑल वेग, दिस इज ऑल
दिस इज ऑल विदाउट एनी बेसिस, और हम जिसे कहते हैं बड़े तफसील से बड़े डिटेल से। कांग्रेस पार्टी के लीडर और रुकन असेंबली इरफान हफीज लोन ने कहा कि वाजपेयी जी ने जो कहा है वो हम आज भी मानते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियां दी है वो हमेशा याद रखी जाएगी। जी ने जो कहा, जो हम आज भी मानते हैं कि ये गांधी जी का देश है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ पर इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ा है, जिस तरीके से गांधी परिवार ने कुर्बानियां दी है, तो उसी तरीके से वाजपेयी जी ने भी वही बात की जो गांधी जी के देश में होनी चाहिए कि हर समस्या का वार्ता से, बातचीत से, मुज़ाकरात से हल हो। और हम समझते हैं कि जो आइन के दायरे में मसला हल हो उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। जब मैं हमेशा कहता हूं कि हमें जैसे स्टेटहुड बहाल किया जाए, हमारे बाकी राइट्स पे बात हो, क्योंकि फेडरलिज्म जो है ना, फेडरलिज्म में हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, वेरी वास्ट स्कोप। तो उसके साथ साथ हम चाहेंगे कि जो यहाँ पर जिस गांधी जी के देश में वार्ता, बातचीत उससे हल हो। और हम कहना चाहते हैं कि जो भी वायलेंस है वो कोई रास्ता नहीं है। डायलॉग, रिकन्सिलेशन, दैट इज द वे फॉरवर्ड। यही अच्छे लोगों की अच्छी बातें हुई। और ये भी कहा गया ऑनरेबल सीएम साहब ने और बाकी मेंबर्स, हमारे मेंबर्स ने, ऑनरेबल मेंबर्स ने, कि हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि हम सबको कोई नफ्सिन जायकातुल मौत, हमें इस दुनिया को छोड़ना है। तो इस दुनिया को छोड़ के हमें सबको फॉर हेवनली अबोर्ड जाना है। तो लेकिन जब कल हमें याद करेंगे, हमारा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ताकि वो कहेंगे देखो जी मेंबर्स का ये कंट्रीब्यूशन है। तो इस बात पे भी वहाँ एक दूसरे को उन्होंने गुजारिश की ऐसा होना चाहिए। थैंक यू। एमएलए लंगेट से खुर्शीद ने कहा कि कल हमने दरख्वास्त की थी कि एक प्रोविजन लाया जाए ताकि हम 370 के हवाले से एक करारदाद पेश कर सके, जिसे रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आज के इजलास में 6 साल के दौरान फौत हुए अरकान असेंबली और दीगर मेंबरान को खराज अकीदत पेश किया गया। ओवरऑल अगर हम देखें कि पूरा जो ये सेशन है, छोटा सा सेशन है, इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो इसमें जो कल आपने देखा होगा कि कल जो स्पीकर का इंतखाब था, उसके बाद जो है हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि इस सेशन में जो है प्रोविजन आप लाइए कि हम एक रेजोल्यूशन रखें 370 के हवाले से, बट अनफॉर्चुनेटली उसे वहाँ पे रद्द किया गया। और आज जो है, आज ओबीसी थी, हम भी चाहते थे कि हम थोड़ी सी बात करें, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम बात नहीं कर सके। तो हम चाहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ ये है ओबीसी में कि जिस तरह से 57 जो है, जो साबका जिसमें वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा या जो गवर्नर या स्टेट के जो असेंबली के अरकान हैं, जिनकी इन 6 सालों में मौत हुई, तो अनफॉर्चुनेट है कि एक लंबी सी फहरिस्त आपने देखी होगी। शायद वो लंबी सी फहरिस्त खुद बयान करती है कि किस तरह से जो है इस हाउस के साथ भी एक ताज़ियत करने की जरूरत थी कि इस हाउस को भी 6 साल के लिए फौत किया गया था। तो मेरे ख्याल में 57 नाम नहीं थे बल्कि 58 नाम थे। वो सबसे पहला नाम जो था इसमें वो ये हाउस था जिसे फौत किया गया था पिछले 6 साल के लिए। और इसे फौत करने वाले उधरी असेंबली में जैसे हुए कुछ लोग। डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरवकत सिंह ने आज ब्लॉक ऑफिस त्राल में एक जायजा मीटिंग की सदारत की, जिसमें तहसीलदार त्राल इमरान अहमद, बीडीओ त्राल और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डीडीसी मेंबर ने आने वाले साल के माली प्रोग्राम का जायजा लिया और अफसरान पर जोर दिया कि वो तनदेही के साथ काम करें। ये आज पहली बार नहीं हुआ। आपको पता है कि 3-3.5 साल से हम हर बार एक रिव्यू करते हैं डिपार्टमेंटों का, उसके बाद इंडिविजुअल रिव्यू करते हैं कि जो इस साल का प्लान बना था हमारा पिछले साल का, कितनी एग्जीक्यूशन हुई, कितने कामों में टेंडर निकला, कितनी स्कीमें जो है इम्प्लीमेंट हुई, कितनी चीज़ों पे। तो सारे डिपार्टमेंट जो है वो कॉपरेट करते हैं इस चीज़ में। और जो हमारा अपना डोमेन होता है पीआरआई का, तो उसी हिसाब से हर साल की तरह इस साल भी किया गया, ताकि हम जब नया प्लान बनाए तो हम देखें हमने पुराना पैसा हमारा ज़ाया तो नहीं हुआ। हमारा पुराना पैसा सारा, क्योंकि पिछले सालों में 99.9% हमारा अगर कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं था, उसके बगैर सारा पैसा इम्प्लीमेंट हुआ है ग्राउंड में। ये हमारा पैसा है, टैक्स का पैसा है, इसका ख्याल रखना, अकाउंटेबिलिटी रखनी। और हमारी जो अफसरों की टीम भी त्राल की है, बड़े सुलझे हुए अफसर हैं, तो ये सारे कॉपरेट करते हैं। और इशू था रेट लिस्टों का कि यहाँ बार बार आ रहा है कि जो फूड शॉप्स हैं उन पे मनमानी हो रही है, और उसके अलावा जो दूध की दुकानें हैं, कहीं सब्जी की दुकानें हैं, बाकी हैं मेडिकल शॉप्स हैं, उन सब पे एक
रेट लिस्ट होना चाहिए, मार्केट चेकिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए भी प्रपोजल मूव किया गया। तो अब मुझे लगता है नए प्लान की हमारी जो तैयारी है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है, आज बिजली डिपार्टमेंट ने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा है। उनको हम आज नोटिस भी निकालेंगे यहाँ से। जो ये अनशेड्यूल्ड कट्स हो रहे हैं इस पे देखा जाएगा, क्योंकि अब मैक्सिमम लोगों ने मीटर लगाना शुरू कर दिया है और पावर का एक बड़ा इशू है। इस पॉपुलर गवर्नमेंट आई है, इस पे देखेगी कि सर्दियों के आयाम में कहाँ से इनको आगे बढ़ते हैं। शहर राजौरी को खूबसूरत बनाने के लिए म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने गैर कानूनी पार्किंग और गैर कानूनी रेडियो को हटाने के लिए मुहिम शुरू कर दी है। मुहिम का मकसद शहर में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना और आवाम को बेहतर सहूलत फराहम करना है। इसके साथ ही शहर के मसरूफ तरीन इलाकाजात पर अवामी आराम के लिए कुर्सियां भी नस्ब की गई ताकि शहरियों को किसी किस्म की दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। खासी शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी की एक मुहिम पिछले 2 दिनों से लगातार देखने को मिल रही है और खासी शहर में लगातार गैर कानूनी तौर पर रेडी फड़ियां और गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई की रही है। ये म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी हमारे साथ है। सर, किस तरह की मुहिम है? देखिए, ये अभी हम एक कॉम्प्रिहेंसिव टूर भी लगा रहे हैं। इसमें 2-3 मकसद हैं इस चीज़ से। सबसे पहले है कि जो एंटी एनक्रोचमेंट हम ड्राइव जो चला रहे हैं, जो भी स्मॉल एनक्रोचमेंट्स हैं उसको हटा रहे हैं। प्रैक्टिकली एनालिसिस भी है हमारी कि जो हम फ्यूचर के लिए एक प्लान बना रहे हैं ट्रैफिक डिकंजेशन के लिए, उसमें हमने कुछ स्टेप्स लिए। जैसे डेरा बस स्टैंड का भी हमने म्यूनसिपैलिटी ने काम किया, वो भी उसके ओवरऑल कुछ जगहें हैं उसको हम नो पार्किंग जोन कर रहे हैं, कुछ जगहें हैं उनको हम पार्किंग जोन करेंगे डिक्लेयर, कुछ जगहें ऐसी उनको वेंडिंग जोन करेंगे, कुछ नॉन वेंडिंग जोन कर रहे हैं। तो इसलिए ये ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव टूर है। देखें, ये हमारी वर्दी डीसी साहब की डायरेक्शन थी कि लोगों की आराम के लिए ऐसी जगहें जो पब्लिक स्पेस लोग बैठते हैं कहीं हैं उस पर काम किया जाए। तो वर्दी डीसी साहब की डायरेक्शन से ये अभी काम हो रहा है, तो हम काम कर रहे हैं। और बिल्कुल जो आपने बोला, हम ऐसी जगहें देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी अनक्रोच हो लोगों को राहत मिले, तो वो उस पर हम काम करेंगे। और तमाम जगह पे ऐसी जगह बेंचेज है वो लगाई जाएंगी, खासकर मार्केट एरिया, खासकर वो एरियाज में हम ये काम करेंगे। इसमें पूरी हमारी टीम जो ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है ये लगातार चलता रहेगा और ट्रैफिक पुलिस की जो डायरेक्शन हुई है, हमारी पुलिस भी साथ है और हमारे ईओ साहब, तहसीलदार साहब, हम सारे इलाके इसको रिमूव करेंगे और इसको बिल्कुल एक स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट के लिए अवेलेबल कर देंगे। अभी तक के खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान रसूलुल्लाह को इजाजत दीजिए। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।